Dear students of BCom final year Hindi and English medium, as I have already informed you that in the first video lectures, the next video lectures regarding process account will be exemplary explanations, and therefore on whiteboard I have already written a symbolic numerical problem that is related with process account, and on the basis of these informations today I will try to explain what actually are the nature of process account and how it has been prepared. So please watch and listen the video very carefully. First we read the question. A company has produces a product and it passes through three different processes, namely A, B and C. As far as Hindi medium student, एक कंपनी अपना प्रोडक्ट तीन विभिन्न प्रक्रियाओं में से गुजार कर कंप्लीट करती है और प्रक्रिया का नाम है ए, बी और सी. फॉलोइंग आर द डिटेल, जिसके विवरण नीचे दिया गया है. द पर्टिकुलर्स, प्रोसेस ए का डिटेल, प्रोसेस बी का डिटेल, प्रोसेस सी. द फर्स्ट आइटम इज द मटेरियल्स. 1000 kg in process A, and in the B and C there is no material. So there is a fundamental rules. If you want to produce a commodity, you need the raw material, but this raw material is not required in each and every process because the fundamental product are produced. जैसा मैंने कल आपसे कहा था, यदि फली तेल की इंडस्ट्रीज है तो पहली प्रक्रिया में क्रूड ऑयल फाइंड आउट करने के लिए आपको फली दाने लगेंगे. ये फली दाने आपको हर प्रोसेस में लगने वाले नहीं है. Therefore the starting process is required material. Hence when we will start the problem, look here, the process A account, the name of the column is particulars, kg, kilogram, rupees, and same in the credit side. So according to the nature of problem, the first transaction is the material. It is the material introduced in first process. What is the quantity? 1000. Therefore look here, to materials, in the quantity column 1000. Cost of material is also available in the numerical problem, that is the 10 lakhs. This 10 lakhs is the cost of 1000 kg material which are being utilized in process E. जो मुख्य उत्पादन आपका हो रहा है उसके लिए आपको कच्ची सामग्री लग रही है, और वो कच्ची सामग्री है 1000 किलो. ये कच्ची सामग्री हर प्रोसेस में नहीं लगती है, इसीलिए इसे मेनी टाइम रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस भी बोला जाता है. अब उसकी क्वांटिटी 1000 है, इसकी कॉस्ट कितनी, तो ये प्रॉब्लम्स में दी होती है. जैसे यहाँ दी है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल 10 लाख, तो 1000 मटेरियल, द कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज एंड इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ई. जब तक फंडामेंटल रॉ मटेरियल आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, द प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट. हल्दी तेल का बिजनेस है, तेल डालना पड़ेगा. कपड़े का बिजनेस है, कॉटन डालना पड़ेगा. आटा बेसन का बिजनेस है तो ग्रेन्स डालने पड़ेंगे आपको. आप दाल नहीं डालोगे तो बेसन नहीं बनने वाला है. गेहूं नहीं डालोगे, आटा नहीं निकलेगा. कॉटन सीड, कॉटन नहीं डालोगे तो कपड़ा बन के नहीं निकलेगा. देयरफॉर दिस इज द रॉ मटेरियल व्हिच इज required in the first process. Okay, then on the basis of only raw material the final product cannot be produced. Therefore we need the help of labor. Look here, next, labor. First we will prepare a process A, then we'll prepare process B, then we'll prepare process C, because the process A's final product will be the raw material for process B. Hence you strictly observe the video. So the labor again rupees 5 lakhs. The column of quantity is utilized only for raw material and up to some extent the wastage, loss in weight, normal loss, etc., etc. So here the labor charges 5 lakhs. Then factory overhead. We consider here only the data which is related
As far as concerned the numerical problems of process A, मैं अभी प्रोसेस B और C के कोई डाटा ले नहीं रहा हूं, क्योंकि आपके लिए जो एग्जांपल मैंने सेट करके दिया है, तो सबसे पहला कौन सी प्रोसेस बन रही है? A। जब A प्रोसेस बन रही है तो B और C प्रोसेस के डाटा यहां पर यूटिलाइज होंगे नहीं। Then other expenses, so factory expenses 5 lakhs, and then other expenses rupees 1 lakhs. Okay, this is the introduction and all the debit side items of a process account. The next, loss in weight. कल ही मैंने आपको बताया था कि during the process when we enter the raw material in the machineries, final products may or may not find out exactly equal to weight of raw material. जब आप कोई प्रोसेस को चालू करते हैं और उसमें यदि रॉ मटेरियल आप डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितना रॉ मटेरियल आपने डाला है उतना ही फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसके बीच में मशीन कुछ मटेरियल को कंज्यूम करती है, वो दिखाई नहीं देता है। मतलब आपने फली दाने डाले 1000 किलो, तेल 1000 किलो मिलने वाला नहीं है। फिर प्रश्न ये उठता है कि सर यदि तेल 1000 किलो नहीं मिल रहा तो गया कहां? वो दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इट विल बी कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। जो प्रोसेस होती है उसमें वो मशीन खा जाती है। आपकी सादी भाषा में यदि मैं बोलूं तो आप उसको मान करके चलिए कि हमने फली दाने डाला, प्रोसेस हुई, तेल सर 1000 किलो क्यों नहीं निकला? नहीं निकलेगा, वो मशीन ने खा गई। दैट इज द लॉस इन वेट। जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या कहा हुआ है? The 10% will be loss in weight. Now the loss in weight is a credit side item by loss in weight 10%. Now this 10% of which? So 10% of material utilized in each and every process. So as far as concerned the process A, look here, 1000 material are being utilized. यहां पर आपने प्रोसेस 1 में मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस हुआ? इज द 1000 के 10%, therefore 100 kg. 1000 raw material introduced in processing, then make the expenditure of labor, factory expenses, other expenses. When final product you observe that there is a loss in weight 100 kg, it means by production. If you introduce 1000 kg raw material and loss in weight is 10%, 100 kg, so what will be the quantity of material produced in process A? यदि A प्रोसेस में आपने 1000 किलो का रॉ मटेरियल डाला है और एक्सपर्ट का कहना है कि इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस मटेरियल अर्थात 1000 के 10% यानी कि 100 किलो लॉस इन वेट हो जाएगा। जब 1000 में से 100 किलो लॉस इन वेट निकल गया तो बचा कितना? 900 किलो। वो 900 kg इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ए। दिस इज द नेचर ऑफ प्रोसेस। अब आपको प्रोसेस कुछ तो समझ में आ रही होगी कि आपने प्रोसेस ए स्टार्ट किया, वहां पर एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत थी, आपने 1000 किलो वहां पर लगा दिया, ये 10 लाख रुपए का हुआ, 5 लाख का लेबर हो गया, 5 लाख की फैक्ट्री हो गई और 1 लाख का अदर एक्सपेंसेस, मतलब ये 21 lakhs. It means you have introduced in the process 1 the material of 1000 kg of rupees 21 lakhs. प्रोडक्शन कितना हुआ? तो 1000 में से 10% लॉस इन वेट गया। लॉस इन वेट इज नॉट एनी वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं होती है, कृपया ख्याल रखिए। नॉर्मल लॉस और लॉस इन वेट इट मींस इट इज कंज्यूम्ड, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो 900 kg आया इसकी कॉस्ट आ गई 21 lakh. This is the production transferred to next process or process B.
because this is not the final product, it is not a sellable. Transfer to process B. And what actually are the requirement? To prepare a process account and find out cost of production per kg in each process. देखिए फंडामेंटल आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एकदम रफली नहीं रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। उसने क्या बोला है, क्या प्रोसेस ए बनाई है और उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल रही है उसकी पर केजी कॉस्ट भी निकालिए। तो पर केजी कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 21,000 is the cost of production. Now it will divided by 900. चेक करो, आप भली वीडियो देख रहे हैं बट चेक कीजिए, बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 900 kg is the production, cost is 21 lakh, therefore the 21 lakh cash and the per unit cost will be rupees, it can be round up, 0.33। यहां पर आपको दशमलव तक जाना है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा रहती है। यदि आप पॉइंट को रिमूव कर देते हो तो आपका फाइनल आंसर अफेक्टेड कर देगा। Therefore, as far as concerned the process account, you don't round up the decimal amount. Okay? 1000 किलो लगाया, 21 lakhs की टोटल कॉस्ट हो गई। 21 के इसमें से 100 माइनस हो गया 2333। ये एक 1 पॉइंट ज्यादा हो गया होगा, चेक कर लीजिए 1 मिनट। 2333.34 कर देता हूँ बिकॉज 0.3333 इज कंटिन्यू। तो दिस इज द प्रोसेस ए। अब समझ में आया, प्रोडक्ट फाइनल नहीं हुआ है बिकॉज इट इज रिक्वायर 3 डिफरेंट प्रोसेस। सो आफ्टर कम, और दूसरा द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ए will be the raw material for process B. First process is over, then the problem will be start of process B to transfer from process A। ये देखिए प्रोसेस A का जो फाइनल प्रोडक्शन था 900 किलो, ये ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस B को। तो यहां हमने क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस B। ये अब प्रोसेस बी है, ये उस समय तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक प्रोसेस ए का मटेरियल यहां पर नहीं आ जाता, बिकॉज द नेचर ऑफ प्रोसेस बी इज डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ प्रोसेस ए। ए सप्लाई करेगा तो बी प्रोसेस चलेगी, बी सप्लाई करेगा तो सी प्रोसेस चलेगी। देयरफॉर वी फर्स्ट कंप्लीट द प्रोसेस ए अकॉर्डिंग टू द डाटा व्हिच इज अवेलेबल विद अस। नाउ प्रोसेस बी, सो हियर इज द मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नो मैटर बिकॉज बार बार रॉ मटेरियल लगेगा नहीं। बट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए से कितना आया, 900 kg मटेरियल 21 lakhs। दिस इज द डाटा विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्रोसेस ए is a fundamental principle to prepare the process account। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ओरिजिनल डाटा को डायरेक्ट प्रोसेस बी या प्रोसेस सी में एडॉप्ट नहीं करना जब तक अर्लियर प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्शन ट्रांसफर नहीं होता। तो पहला काम ए का प्रोडक्शन बी में ट्रांसफर, और बी बनाते समय बी में ए का प्रोडक्शन ट्रांसफर करके लाओ, बाद में नेचुरल वे में चलेगा ये लेबर rupees 2 lakhs, then factory overhead 3 lakhs, then other expenses 50,000। Therefore total 900 introduced, therefore it is an input। 21 22 23 26 lakhs 50,000। If we make the total the both the sides 926 lakh
It means in the process A 900 kg of raw material. Basically this is the finished product of process A, but it will be treated as a raw material for process B of rupees 21 lakhs and all other expenditure. Therefore in the process B the total input is 900 kg and cost is 26 lakh 50,000. Now this process is also loss in weight 10%. इस प्रोसेस में भी जितना मटेरियल इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब आप बोलेंगे सर पहले प्रोसेस का तो समझ में आ गया, सेकंड में क्यों हो रहा है? अरे होगा ना भाई, मशीन व्हेन यू मेक अ प्रोसेस, आपको घर में बता रहा हूं, आप एक गिलास पानी लो और उसको 10 बार दूसरे गिलास में नापो तो आप देख लेना आपका पानी 10वीं बार में उतना नहीं रहेगा जितना पहली बार गिलास के अंदर में था। अब आप फिर गया कहां? सर गिर गया इधर उधर, तो वैसे ही मान के चलिए मशीन उसको कंज्यूम करती है। तो 10% ऑफ इनपुट केजी, इनपुट केजी इज हाउ मच? 900 का 10% कितना हुआ? 90। अगेन देयर इज ए नो वैल्यू, लॉस इन वेट की वैल्यू नहीं होगी। तो 900 में से 90 केजी मटेरियल लॉस इन वेट हो गया, तो यहां प्रोडक्शन कितना हुआ? 810 केजी। दिस इज production. Again it is transferred to process C because your final product will prepare after complete process C. A में से निकला, फिर अगली प्रोसेस के लिए B में जाएगा। अब ये B में हमने पूरा वर्क किया तो B में हमको प्रोडक्शन कितना मिला? 810। इसमें इंट्रोड्यूस कितना था? 900। 90 कहां गया? तो लॉस इन वेट हो गया। लॉस इन वेट मींस इट इज कंज्यूम्ड बाय द मशीन, देयरफॉर देयर इज ए नो एक्सपेंडिचर। आपको ये बिका नहीं है, अभी धीरे धीरे स्टेज पे प्रॉब्लम जाएगा। अब ये 810 इसकी कॉस्ट हो गई 26 लाख 50,000। यहां पर टोटल थे 21 में से 100 गया तो 900 की कॉस्ट आई थी 21 लाख। पर यूनिट कॉस्ट को क्या किया था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। सेम प्रोसीजर हियर अगेन, यू मेक द कैलकुलेशन। चलिए आप लोग प्रोसेस बी की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है? हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोसेस बी? दिस इज द 26 lakhs 50,000 is for how much production? 810. So what is per kg? At the rate of per kg कीजिए आप 26 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 810। so as per my calculation it is 3,271.60. you have to use the point in process account, don't forget। पॉइंट्स को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, राउंड अप नहीं करना है। दिस इज अ प्रोसेस अकाउंट, कॉस्ट शीट नहीं पढ़ा रहा हूं, इतना ख्याल रखिए आप। ओके, नाउ द प्रोसेस बी इज कंप्लीट। नाउ व्हाट विल बी द फर्दर ट्रीटमेंट? सो अगेन प्रोसेस ए हुआ था, ए में भी प्रोडक्शन निकला, बेचने लायक नहीं था बल्कि उसको प्रोसेस रिक्वायर थी, तो कहां गया? बी में। फिर बी में और बढ़िया फिनिशिंग किया, उसको पॉलिश वगैरह किया, चमकाने का काम किया, तो भी प्रोडक्शन डायरेक्ट मार्केट में बेचने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसकी पैकिंग करना बाकी है, इसकी ब्रांडिंग है, इसको लेबलिंग चिपकाएंगे, थोड़ा बहुत इसको चकाचक बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये मार्केट में बिकने लायक होगा। देयरफॉर नाउ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस बी विल ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, हैज द प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। लुक हियर, यहां था ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, यहां पर है ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, यहां है ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, और यहां पर है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। ये कहां गया? बी में, इसीलिए ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में 900 इज कमिंग फ्रॉम वेयर? प्रोसेस ए, देयरफॉर प्रोसेस ए। The production of process B will transfer to where? Process C, therefore process C. And in the process C, how much input? 810 kg. From where? Process
B. In how much cost? 26,50,000. Now for further process, again here is the expenditure, that is the labor 50,000. Then factory expenses 1 lakhs. Then other expenses, it is also 1 lakhs. Some of you may ask, sir, why this expenditure is required in another process also? जैसा मटेरियल एक ही प्रोसेस में लगा, बाकी प्रोसेस में तो सर नहीं लग रहा ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि आप बार बार फली दाने थोड़ी डालोगे मशीन में, तो सर बाकी फिर खर्च क्यों लग रहा? तो खर्च इसीलिए लग रहा बिकॉज दिस इज द डिपार्टमेंट, ये प्रोसेस है, इसका मतलब कोई यहाँ पर हवा में काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी मशीन है, सर वहां पर भी मशीन है, यहाँ भी मशीन है, भैया यहाँ मशीन रॉ मटेरियल की चूरा करने की, क्रूड करने की, फिर सर यहाँ मशीन दूसरी है जहां पर रिफाइंड हो रहा है, सर थर्ड प्रोसेस में मशीन, यस यहाँ पर फिनिशिंग हो रहा है, देयरफॉर द नेचर ऑफ मशीन्स आर डिफरेंट, नेचर ऑफ लेबर्स आर डिफरेंट। हाँ, एक्सपेंडिचर अलग अलग है ना, हियर इज द 5 लाख रुपीस इज द कॉस्ट ऑफ लेबर, ये लेबर की कॉस्ट देखिए ग्रेजुअसली कम होते जा रही है, एक्सपेंडिचर कम ज्यादा होते जा रहा है, इट विल बी डिपेंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोसेस। So look here, now we are at the stage of conclude the problem. Now 810 is the input quantity and the total cost is, as per my calculation, it is 29 like 26, 50, 50, 27, 28, 29. 810 is the total and 29 lakh is the cost. Now look here, here also by loss in VAT. अब यहाँ being as a student हिंदी मीडियम, आपको ज्यादा का दिमाग नहीं लगाना है कि सर लॉस इन वेट सभी प्रोसेस में होगा क्या, वो गणित वाले ने बोला है होगा तो होगा, नहीं बोला है तो नहीं होगा, ये आपके मर्जी से नहीं होगा। यहाँ पर कोई आपका फाइनल अकाउंट नहीं है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% लगेगी तो लगेगी, सर ये लॉस इन वेट हर बार 10% रहेगा, क्या रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये 10%, 5%, 2% भी हो सकता है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। आप बोले सर हमने कैसे पहचाना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिख के आएगा, सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखा नहीं है, सो देयर इज ए नो लॉस इन वेट, मामला खत्म। ओके, process account solution will be prepared according to the nature and language of numerical problem, not as per your rule। नहीं तो सर हम ये मान के चले थे कि 1000 kg का उसने इनपुट इंट्रोड्यूस किया, अब सर जब प्रोसेस है तो कुछ ना कुछ तो लॉस इन वेट होगा ना, प्रॉब्लम में नहीं दिया था तो हमने 10% कर दिया, ऐसा करना नहीं। ओके, बट हियर इज द लॉस इन वेट 10%। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि whenever the normal loss in weight, scrap, if suppose these terms are given in percentage, so it will be calculated on the input unit। input unit का मतलब बता रहा हूं मैं, यदि आपको प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस या लॉस इन वेट निकालना है तो उसके लिए उसके डेबिट का जो टोटल इनपुट है, बिकॉज ये दिस इज द अर्लियर स्टेज प्रॉब्लम, आगे चल के इसमें ओपनिंग स्टॉक्स आएगा, परचेस आएगा, सो इट मे बी इंक्रीज, देयरफॉर अभी टोटल पे जा रहा है, जो लेफ्ट हैंड की जो टोटल क्वांटिटीज आ रही है इट विल डिपेंड। बाद में प्रोसेस बी, ये देखिए टोटल कितनी 900 के 10% 90, फिर प्रोसेस सी में गए टोटल कितनी 810, उसके 10% 81, अगेन नो वैल्यू, देन द प्रोडक्शन ट्रांसफर टू, अब ये फाइनल प्रोडक्ट है, अब ये कहीं पर कोई नेक्स्ट प्रोसेस की जरूरत नहीं है, नाउ योर प्रोडक्ट आर सेलेबल इन द मार्केट, हैंस इट विल ट्रांसफर टू डायरेक्ट गोडाउन। हाउ मच, ये देखिए 810 था, 810 में से और लॉस गया, चेक कीजिए 810 minus 81, so the remaining is the production, in cost of production is 29
नेक्स्ट देयरफॉर एट द रेट ऑफ जो प्रोडक्शन गोडाउन को ट्रांसफर हुआ है, ये इसका एट द रेट जो है ये आपको निकाल करके देना होता है। ये एट द रेट है ₹3978.05। Therefore, this is the nature of process account. And industries maintain the process account, prepare the process account because he want to know the exact cost of productions of their products in the different stages. यानी कि अब उसको ये पता चल चुका है कि उसका एंटायर प्रोडक्ट फाइनल जो मार्केट में सेलेबल है उसकी 1 किलो की कॉस्ट कितनी आई है, 3,978 रुपया 5 पैसा। अब ये फर्दर डिसाइड करेगा आगे जाकर के कि उसको सेल कितने में करना है। सो टेक्निकली व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस एंड सर व्हाट विल बी द प्रॉफिट नॉर्मली इज नॉट द मैटर ऑफ प्रोसेस अकाउंट, बट इन सम केसेस wherever the sales are available we will calculate the profit also, but as far as concerned the syllabus of become final year only simple numerical problem will be there in the examination and you will have to solve as it is. Okay, नहीं समझ में आया होगा, अगले लेक्चर में और क्लियर करेंगे।